This is the FM Gold channel of All India Radio. In the special bilingual program, now we bring you a discussion on pre-budget analysis on banking and finance. The participants are economic analysts A.K. Bhattacharya and Santosh Tiwari. S. Rangabashyam, journalist, initiates and moderates the discussion. Today we are talking about the budget expectations, and we'll try and focus on the banking and financial sector. If I could begin with you, Mr. Bhattacharya, what would you say as far as the banking sector is concerned, the financial sector is concerned? What all is being expected from the General Budget 2020? Well, I think if you are looking at the budget for 2021 to be presented on 1st of February, I think the key issue will be on how much money is provided for recapitalization of public sector banks. We all know that several banks, almost 10 banks, were merged into 4 banks in the last few months, and many of those banks have now come out of the prompt corrective action mode. But the need for providing capital to help them restart the lending process in a sustainable way is still, the target is a long way off. So therefore, a key issue from the banking perspective would be to see how the budget addresses the need for fresh capital for the public sector banks. As we all know that 70,000 crore of fresh capital was pumped into public sector banks in the current financial year. And this was to happen over a period of time during the year, but it was upfront loaded into the thing so that the banks can resume their lending operations a little more than they otherwise would have done. Now, the importance of what money is allocated for public sector banks capitalization for next year would be critical, because this is the time when they may have come out of the prompt corrective action mode, but they need what is called growth capital, in a sense that the capital that helps them go out in the market and lend more to sustainable projects, which gives them good return in terms of net interest margin. So the key issue in my view from this budget would be how the government tackles the issue about recapitalization of public sector banks. तिवारी साहब, जब हम बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र की बात करते हैं, पिछले कुछ सालों में हमने देखा, जो हम अक्सर बात किया करते हैं एनपीएज की, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, वो एक ऐसा मुद्दा है जो परेशान कर रहा है बैंकिंग क्षेत्र को। तो बजट जब पेश होगा 1 फरवरी को, तो वित्त मंत्री जी के पास क्या कुछ विकल्प रहेंगे कि जो एनपीएज हैं उन पे कहीं ना कहीं काबू पाया जा सके और उसे नीचे ला सके? इस तरह का कुछ प्रावधान वो कर सकते हैं या कुछ इस तरह के इंसेंटिव्स दे सके फाइनेंशियल सेक्टर को, बैंक्स को, कि जो एनपीएज हैं उन पे एकदम हम काबू पा सके? इस बजट में अगर आप बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर को अगर देखें तो इसको पूरे परिप्रेक्ष्य में देखने की आवश्यकता है कि जो, जैसा आपने कहा कि एनपीए जो लेवल था वो बैंकों का काफी बढ़ गया था, उसमें सुधार दिख रहा है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड आया, सरकार ने और आरबीआई ने मिलकर जो कदम उठाए हैं पिछले 2 साल में, 3 साल में, उसका इफेक्ट वो दिख रहा है। अब एनपीए का जो प्रॉब्लम था, वो जितना बड़ा प्रॉब्लम था, उसमें सुधार साफ तौर पर दिख रही है। एनपीए प्रॉब्लम से आगे बढ़ के अब जो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर के लिए करने की आवश्यकता है, वो शायद जितना डायरेक्टली जुड़ा हुआ है इस मुद्दे से, जैसा भट्टाचार्य साहब ने कहा कि उनमें इन्फ्यूज करना कैपिटल जो है वो डायरेक्ट है व्यवस्था, उससे ज्यादा बड़ा मुद्दा आज ये है कि फिर से लेंडिंग जो है वो रिवाइव हो सके। अब वो जुड़ा सरकार के उन कदमों से है जो कि बजट में अपेक्षा की जाती है कि आएंगे, वो है कैसे आप कंजम्पशन को बूस्ट करते हैं। जैसे ही सरकार जो है कुछ पैसा, तकरीबन 2 लाख करोड़ रुपए जो है वो अपने स्पेंडिंग के थ्रू इकोनॉमी में डालेगी, बजट में ऐसे प्रावधान आने चाहिए जिससे कि वो इकोनॉमी में आए, जिससे कि पूरा का पूरा जो ग्रोथ साइकिल है वो जो इम्पैक्टेड और अफेक्टेड हो गया है वो फिर से रिवाइव हो और कंजम्पशन जो है वो बढ़े। ये 1.5 लाख से 2 लाख करोड़ रुपए जो है वो अलग अलग तरीकों से सरकार जो है वो डाल सकती है इकोनॉमी में, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर पीएम किसान या इस तरह के, या इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करके। जब ये कंजम्पशन ये बढ़ेगा तो एक रिवाइवल जो ग्रोथ का होगा, उससे फिर बैंकिंग व्यवस्था, बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर में भी एक मूड और मोड आएगा जिसमें कि लेंडिंग जो है वो बढ़ेगी। सो जो इनडायरेक्ट जो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर को इम्पैक्ट कर सकता है वो कदम सरकार से बजट में आने की अपेक्षा है और ऐसा आना चाहिए। जैसे ही कंजम्पशन आप बढ़ाएंगे, एक जो है ग्रोथ मोड वो ऊपर आएगा, लोग क्रेडिट जो है वो लेना चाहेंगे और उससे बैंकिंग सेक्टर की व्यवस्था जो है वो लेंडिंग जो है वो बढ़ेगा। एक आध कदम मैं बताता हूं, जैसे कंस्ट्रक्शन जो है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर वो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है। अगर आप जो इंटरेस्ट रेट है बैंकों को इस तरफ डायरेक्शन की तरफ मूव करें जहां पर कि जो इंटरेस्ट रेट है वो 1-2 साल के लिए जो है वो कम रखा जाए,
सरकार ऐसी व्यवस्था कुछ लाए जिसमें कि हाउसिंग सेक्टर जो है उसको बढ़ावा दिया जाए, या फिर जो अफोर्डेबल हाउसिंग है उसका लिमिट जो है उसको थोड़ा बढ़ा दिया जाए। जहां ये सारी व्यवस्था होगी वहां लेंडिंग जो है वो बढ़ेगा और बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर जो है बैंकों के जो कामकाज में सुधार होगा और लेंडिंग होगी। दूसरा और एक बड़ा कदम जो है जो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर में आज लाने की आवश्यकता है वो ये है कि जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनकी लेंडिंग जो है बैंक आज करने की स्थिति में नहीं है। सरकार कहीं न कहीं इस बारे में सोच सकती है कि एक डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है बड़ा जो सरकार सपोर्टेड हो वैसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्रिएट करे जिससे कि बैंकिंग व्यवस्था से बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए लेंडिंग जो है वो इम्प्रूव हो। तो ये जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कदम है इनके जरिए सरकार इस बजट में ऐसे कदम उठा सकती है जिसमें कि बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर में जो एक मंदी का दौर जो दिख रहा है, जो लेंडिंग नहीं है, क्रेडिट नहीं है और एक नीचे का मूड और मोड जो बना हुआ है पिछले सालों में, उसको रिवाइव करके एक वाइब्रेंसी लाई जा सके। Mr. Bhattacharya, we are talking about the NPA issue, the non-performing assets. Although in recent months, there has been some improvement, especially in public sector banks. But the spike in NPAs and the entire discourse about public sector banks and even private sector banks, that has probably led to a kind of a side effect wherein now banks and financial institutions are wary of lending, even to the right project or even for the right purchases of whether it is, commercial property or house or whatever. So that has means the basic banking operation of a bank has taken a beating because of this. I think the kind of financial stress through non-performing assets the banking sector has gone through, it is but natural that the banking system, which is heavily dependent on the public sector banks, still about 3/4 of our banking system is in the public sector. So they are obviously a little wary of going out and doing the kind of lending that is necessary for reviving economic growth. At the same time, important that the problem of growing NPAs, which, as you rightly pointed out, has been more or less at least tamed. They are still a problem, but they have been tamed in a sense that they are not growing at the same pace as they were growing. So it is important that while allowing the animal spirit to be unleashed in the banking sector, extreme caution is adopted that the NPA problems don't recur once again. Because once the NPA problems recur, you will get into a vicious cycle once again where the banks will be coming under the burden of non-performing assets. They will come under the prompt corrective action mode. Therefore, they cannot lend anymore. So you may have a banking system, but the banking system will not be able to generate the kind of investment that is necessary through their lending activities. Now, what is clear from this NPA debate is the point that Mr. Tiwari very rightly mentioned, which is there is need to create necessary mechanisms in the system by which long-term financing needs of projects are met. Today, the traditional banking system, because of what is called an asset-liability mismatch, cannot meet the long-term projects financing requirement. The government has revived an institution which was created in 2006, which is called the India Infrastructure Corporation Limited, IIFCL. Now that is actually entrusted with the task of providing long-term finance to projects. If this IIFCL is given more equity, remember that in December, the government allocated 6,000 crore of extra equity to IIFCL. Now, if you give, let us say, 6,000 crore of extra equity, you can safely say that at least 4 times that amount, around 25,000 crore rupees, it will be able to. You will able to lend, and that will go into project financing. So you have to see what kind of financial leeway the center and its budget has, which will be unveiled in a few weeks from now, to provide more equity support to IIFCL, which is in this business of providing long-term finance for infrastructure projects. Having said that, I will just make one quick short point, which is it is extremely important that the financial sector should be kept healthy, and just as insolvency and bankruptcy code was necessary to attack the twin balance sheet problem of both the leveraged Indian corporate sector and overburdened NPA banks. Similarly, the banks, if they go down under and if they become bankrupt, we need a mechanism by which we resolve the bank's problem as well. So I would expect that the budget will provide some clarity on what is the government's thinking on this very critical aspect of how do you tackle a sick bank.
Now, there is a proposal we understand that on Financial Sector Development and Regulation Bill, which is going to come. Now, it may raise many concerns. It may talk about reviewing the contract with the depositors, and a lot of people are a little worried. But I think a budget is the right platform where the government can actually talk about what its plans are with regard to a law that will help resolve the bankruptcy issues in the banking sector. तिवारी साहब, हम लोग जैसे अभी एनपीएस की बात कर रहे हैं, बट्टा खाता जैसे हम कहते हैं कि, मगर इसमें अब बैंकर्स जो कहते हैं कि हमें अब डर लगता है कि एक ठीक प्रोजेक्ट भी है, उसको भी लोन देने में डर लगता है कि पता लगा सीबीआई पीछे पड़ गई या विजिलेंस का केस बन गया। तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं वो आश्वस्त करने की जरूरत है पूरे बैंकिंग सेक्टर को और वित्तीय क्षेत्र को सरकार की तरफ से, कि जहां पर ये बताया जाए कि भाई अगर आपका एक प्योर कमर्शियल डिसीजन था वो गलत हो जाए कोई बात नहीं, उसकी वजह से एनपीएस बने, बट्टा खाता बने, कोई बात नहीं, मगर कोई फ्रॉड ना हो तो फिर ठीक है। तो आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं फाइनेंस मिनिस्टर को भी और सरकार को आश्वस्त करना चाहिए बैंकर्स को कि अगर वो एक प्योर कमर्शियल डिसीजन लिया गया है और अपने आप में वो ठीक है, कोई फ्रॉड नहीं है, तो आप पे कोई कार्रवाई नहीं होगी? सरकार ने, वित्त मंत्री ने भी और प्रधानमंत्री ने भी कई बार ये बात कहा है कि जहां कहीं भी कोई एक्शन लेने की जरूरत है वहां एक्शन जरूर लिया जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लोग डरे। खासतौर से जो आपने बात कही कि बैंकिंग क्षेत्र में जो अधिकारी हैं उनके मन में कहीं न कहीं आशंका ये है, और इस बात को झुठलाया नहीं जा सकता, कि उन्हें एक्स्ट्रा कॉशियस रहने की जरूरत है लेंडिंग में, और वो हैं भी, और इससे इम्पैक्ट हुआ भी है लेंडिंग पर। लेकिन ये सिर्फ एक वजह नहीं है जिसके चलते कि क्रेडिट और लेंडिंग जो है वो आज कम है। 2-3 वजह हैं। एक तो जो इकोनॉमी की आज हालत है उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होना अभी डिफिकल्ट है, लेकिन इन्वेस्टमेंट जरूरी है जो ग्रोथ है उसको वापस लाने के लिए। इसीलिए मैंने कहा पहले भी, और जो भी अर्थशास्त्री हैं और जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये अब कह रहे हैं कि अगर कहीं जो फिस्कल डेफिसिट टारगेट है जो एफआरबीएम में होता है उसको थोड़ा रिलैक्स या उसको ब्रीच भी करने की जरूरत पड़े, जैसे 3.3% अगर है तो 3.8% 0.5% जो है उसको ब्रीच भी करना पड़े तो करना चाहिए। जैसे मैंने कहा 1.5 लाख से 2 लाख करोड़ रुपए सरकार को यह इंश्योर करना चाहिए कि इकोनॉमी में आए, ताकि लेंडिंग जो कंजम्पशन जो है वो बढ़े और लेंडिंग बढ़े। जो आपने सवाल उठाया है उसका आंसर भी आपने ही दिया कि सरकार को ये इंश्योर करना पड़ेगा, चाहे वो कोई मैकेनिज्म हो कि रूल रेगुलेशन के जरिए इसको इंश्योर नहीं किया जा सकता। जब कॉन्फिडेंस जो है वो इंडस्ट्री का, कंज्यूमर का और जो कॉन्फिडेंस है बैंकिंग सिस्टम का, वो तीनों जब एक बार फिर से वापस आएगा सिस्टम में, जिसके लिए सरकार अपने कदम उठा रही है। वित्त मंत्री ने भी कहा है कि डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन आज भी वो डर कहीं ना कहीं है। तो जब ये कॉन्फिडेंस तीनों का, कंज्यूमर का, बैंकिंग सिस्टम का, इंडस्ट्री का, एक साथ जब आके मिलेगा, जो कि कम हुआ है पिछले सालों में और बुरी तरह से कम हुआ है, वो जब मिलेगा तब जाके व्यवस्था जो है वो सुधरेगी और आपको दिखेगा कि लेंडिंग जो है वो बढ़े। एक कदम सरकार का है जहां कि उन्होंने कहा कि 10 पब्लिक सेक्टर जो है बैंक उनको मर्ज करके 4 कर देंगे। तो 4 करने से नहीं होता, सिर्फ वो 4 हो रहा है, वो एक अच्छा कदम है। ये जो कॉन्फिडेंस है इसको भी वापस लाने के लिए कुछ कदम जो है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस पूरे मर्जर व्यवस्था में इन्फ्यूज होना चाहिए, जहां पर कि अधिकारियों को ये छूट हो, जैसा आपने कहा कि जो ऑनेस्ट बिजनेस डिसीजन है उस पर क्वेश्चनिंग ना हो। आप अपने इन्वेस्टिगेट एजेंसीज को भी ये, जो कि किया है वित्त मंत्री ने, आप ये कह सकते हैं कि आप उन्हीं केसेस को लीजिए जहां पर कि आपको लगे कि कोई करप्शन, कोई गड़बड़ है, कोई गड़बड़। ये मैसेज जो है आपने सही कहा, ये मैसेज ड्राइव होना चाहिए। बट फिर इस मैसेज के साथ साथ ये मैसेज ही सिर्फ जो है वो काफी नहीं है चीजों को सुधारने के लिए, व्यवस्था को सुधारने के लिए और इकोनॉमिक ग्रोथ को रिवाइव करने के लिए। मैं सिर्फ एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि इस वक्त जो एक शंका या चिंता का विषय लगता है हमें कि बैंकिंग व्यवस्था की जो क्रेडिट ग्रोथ वो नहीं बढ़ रही है, और क्रेडिट ग्रोथ को बढ़ाना है जिससे कि इन्वेस्टमेंट में तेजी आ जाए कोई। मैं ये समझता हूं कि ये फोकस हमारा शायद थोड़ा इम्बैलेंस्ड फोकस है, क्योंकि अगर आप ऐसी अवस्था जहां पे इंडस्ट्री की डिमांड फॉर इन्वेस्टमेंट नहीं है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन लेवल अभी भी बड़ी नहीं है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन लेवल एक्चुअली घट गई है, उस समय अगर आप बैंकिंग व्यवस्था को कहेंगे कि आप जाइए, आप ज्यादा क्रेडिट दीजिए, इंडस्ट्री को क्रेडिट दीजिए, तब मुझे लगता है डर होगा कि बैंकिंग व्यवस्था एक जोश में आकर इकोनॉमी को हम रिवाइव करेंगे, वह ऐसे गलत जगह में जा सकते हैं। तो मैं ये समझता हूं कि इस वक्त बजट से जो हमारी अपेक्षा या आशाएं होंगी वो इस तरह होनी चाहिए कि एक तरफ आप बैंकिंग सेक्टर का स्वास्थ्य को आप संभाले रखें और दूसरी तरफ आप
कंजम्पशन किस तरह से बढ़े इकोनॉमी में, उसके लिए इवन अगर कोई कैश ट्रांसफर की स्कीम की जरूरत हो, वो आपका उसका इस्तेमाल करे। फिस्कल डेफिसिट की जो चिंता जो है उसको थोड़ी बहुत पॉज दे दें, उसको देने के बाद जो एक्स्ट्रा पैसा उससे जो कंजम्पशन डिमांड बढ़े, उससे मैं समझता हूं कि क्रेडिट डिमांड भी बढ़ेगी। तो मैं समझता हूं ये एक सामग्रिक सोच की जरूरत है, ना ही एक सेक्टोरल अप्रोच, जिससे कि अभी बैंकिंग व्यवस्था को हमें ठीक करना है, क्रेडिट बढ़ाना है तो बैंक को बोलिए क्रेडिट दीजिए आप। यानी आप ये कह रहे हैं कि माने बैंक के तरफ से पुश ना हो वो चीज, कॉर्पोरेट की तरफ से पुल करे, माने कॉर्पोरेट की जरूरत के हिसाब से और वो जरूरत तभी आएगी जब डिमांड बढ़ेगा इकोनॉमी में। उसके लिए डिमांड बढ़ाने के लिए कदमें जरूरी हैं। भट्टाचार्य साहब, कंसोलिडेशन बैंकिंग क्षेत्र में हमेशा पिछले कई सालों से बातचीत होती रही और सरकार भी समय समय पे कंसोलिडेट करती रही, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस होते रहे। मगर अगर हम बात करें जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंक्स में खासतौर पे छोटे कस्बे हैं, गांव देहात है, वहां पे हम देखते हैं कि एक सिंडिकेट बैंक का भी ब्रांच है, एक यूको बैंक का भी है। छोटे छोटे बैंक्स हैं, वो खुद ही स्ट्रगल कर रहे हैं सर्वाइवल के लिए, और उन्होंने उन गांव में, कस्बों में ब्रांचेस खोले हुए हैं जो वायबल नहीं है, और तीनों में से तीनों बैंक ही कहते होंगे कि हम बिल्कुल बंद करने के कगार पे हैं। तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं एक सोच विचार होना चाहिए और इसकी समीक्षा होनी चाहिए कि जो कंसोलिडेशन है उसकी अब जरूरत है, खासतौर पे बैंक ब्रांच व्यवस्था में जरूर कंसोलिडेशन की जरूरत है, पर मेरा ये भी मानना है कि अगर हम देखें कि ये कंसोलिडेशन ही बैंकिंग व्यवस्था को सुदृढ़ कर सकता है या स्वस्थ बना सकता है, फिर ये एक दूरगामी एक दृष्टि नहीं होगी हमारी। क्योंकि अगर हम सोचें कि मर्जर कर देंगे तो बैंकिंग व्यवस्था सुधर जाएगी, कंसोलिडेशन कर देंगे तो बैंकिंग व्यवस्था सुधर जाएगी, मैं समझता हूं ये सिर्फ एक कदम हो सकता है। सच तो ये है कि हमने पिछले 2 साल में करीबन 28-29 पब्लिक सेक्टर बैंक को लाकर हमने 18-19 बैंक में हम कम कर दिए हैं। इससे फायदा जरूर हुआ है, पर इससे और एक जो चैलेंज जो आई है वो कि आप किस तरह से रीजनल रिक्वायरमेंट्स और सिनर्जी जो होती है उसका आप फायदा किस तरह ले सकते हैं। तो मैं ये समझता हूं कि जो मर्जर और कंसोलिडेशन का जो अप्रोच जो है वो सही है, पर उसका इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से आप उसको आप कार्यकर करते हैं उसके ऊपर हमें और भी सोच विचार करना चाहिए। क्योंकि अगर आप ठीक तरह से सोच विचार करने के बाद ही अगर आप इम्प्लीमेंट न कर सके तो इसके अलग एक एडवर्स इम्पैक्ट इकोनॉमी में आ सकती है। और मैं मानता हूं कि बैंकिंग व्यवस्था जो है वो ऐसी एक डेलिकेट सेक्टर है इकोनॉमी की, जिसमें हमें ये देखना है कि मान लीजिए हमारी जो टेक्नोलॉजी तो बढ़ गई है, पर एक्सेस टू बैंकिंग फैसिलिटी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और उसमें टेक्नोलॉजी का प्रभाव और प्रेजेंस, एक्सेस बहुत जरूरी है। ऑलरेडी हमने ये देखा है कि पब्लिक सेक्टर का जो इंक्रीमेंटल जो डिपॉजिट कलेक्शन है वो एक जमाने में इंक्रीमेंटल डिपॉजिट बैंकिंग व्यवस्था में 70% हुआ करती थी। अब वो इंक्रीमेंटल डिपॉजिट वो 20 से 25% में आ गई है शेयर। तो अगर हम ये देखें कि किस तरह से जो पब्लिक सेक्टर बैंकिंग व्यवस्था ये मर्जर कंसोलिडेशन के एक पॉलिसी अप्रोच से ऐसा न हो कि जो पब्लिक बैंकिंग सेक्टर बहुत ही एक स्ट्रांग सेक्टर था उसमें कोई चोट पहुंचे, क्योंकि इसका जो सोशल पर्पस जो है उसको हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। तिवारी साहब, हम लोग जैसे अभी बैंक ब्रांचेस की बात कर रहे हैं, गांव देहात की, टियर 2, टियर 3 छोटे कस्बे हैं, छोटे शहर हैं, वहां पर हम देखते हैं कि जो भी ब्रांचेस होती हैं बैंक्स की, या तो वो रूरल बैंक्स होते हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, या पीएसयू बैंक्स होते हैं, प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स उधर क्यों नहीं जाते? आरबीआई का कोई वो नहीं है दिशा निर्देश की? और जो इंटरनेशनल बैंक्स हैं, कभी आपने सिटी बैंक का या एचएसबीसी का कोई ब्रांच नहीं देखा होगा किसी गांव या किसी छोटे कस्बे में। ऐसा क्यों है कि ये जो बर्डन है इन क्षेत्र को कैटर करने का वो सिर्फ पब्लिक सेक्टर पे ही है, उस वजह से फिर वो लॉस मेकिंग भी होते हैं? ये सवाल जो है ना उसको दूसरे तरह से देखने की जरूरत है। अगर आप इसको सिंपलिस्टिक वे में अगर देखेंगे कि क्यों पब्लिक सेक्टर जाता है और प्राइवेट सेक्टर क्यों नहीं जाता है, क्यों जाना चाहिए नहीं चाहिए, आरबीआई को मैंडेट करना चाहिए, उनको जाना चाहिए, इसको सवाल को उलट के देखिए आप। बैंकिंग सेक्टर की प्रॉफिट एक तरफ है, एनपीए की बात करते हैं, बैंकों के लॉसेस की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप डिपॉजिटर्स का पैसा उतना ही अच्छे से कोई भी बैंक रख सकता है जितना वो प्रॉफिटेबल हो, उतनी ही अच्छी सुविधाएं वो आपको दे सकता है जितना वो प्रॉफिटेबल हो। क्यों प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में अच्छी सुविधाएं हैं? क्योंकि वो प्रॉफिटेबल हैं। प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एनी बिजनेस वेंचर इज इक्वली इंपॉर्टेंट।
with responsibilities. Now, अब आप इसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? पब्लिक सेक्टर बैंक्स जा रहे हैं क्योंकि मैंडेटेड है और सरकार ने कहा है जाना है क्योंकि उनको करना है। दो तरीके से इसमें सुधार हो सकता है। एक तो है जिस तरह से भारत में विकास और तरक्की हो रही है, जो बिजनेस प्रोपोजिशन रूरल एरियाज में भी होंगे, वहां भी बिजनेस प्रोपोजिशंस बढ़ेंगे। अगर आप रूरल एरियाज में एग्रीकल्चरल ग्रोथ होता है या जिस तरह से सड़कें बढ़ रही हैं, बाकी चीजें जो पहले स्थिति थी उससे बहुत सुधार हुआ है। जिस तरह से एक्सटेंशन ऑफ ग्रोथ, रीच ऑफ ग्रोथ जो है वो रूरल एरियाज में पहुंचेगा, बिजनेस बढ़ेगा, वहां एक्सपेंशन होगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, लोगों के हाथ में आमदनी होगी, बैंक्स भी वहां पहुंचेंगे और टैप करेंगे और वहां प्रॉफिटेबिलिटी जैसे ही बढ़ेगी वहां अपने ब्रांचेस खोलेंगे। जो पहले स्थिति थे उससे सुधरी है, ये एक बात है। लेकिन जो सबसे अहम बात यहाँ पर है वो ये है कि आज बैंकिंग व्यवस्था फिजिकल बैंकिंग खाली नहीं है। एटीएम्स आ गए हैं, मोबाइल बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग। जैसे भारत देश के जो डीबीटी स्कीम है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम है, वो इस बात पर आधारित नहीं है बिल्कुल पूरी तरह से कि गांवों में या दूरदराज के इलाकों में कोई बैंक होगा जिसके थ्रू आप लोगों को पैसा पहुंचाएंगे। वो बिल्कुल इस बात पर आधारित है कि बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट होगा। हो सकता है डाकिया जो है उसके पास एक मशीन होगा जिसके थ्रू कि वो पैसा जो है वो लोगों के अकाउंट में डालेगा या निकालने में मदद करेगा। सो बैंकिंग में प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर बैंकिंग व्यवस्था कहां तक पहुंची है और कहां तक नहीं पहुंची है, इसके आगे की बात सोचने की जरूरत है कि जिन क्षेत्रों में आप बैंकिंग व्यवस्था बढ़ाना चाहते हैं वहां टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन करिए। ऐसा ना हो कि पेड़ पर चढ़ के एक मशीन जो उसको चलाना पड़े। ब्रॉडबैंड हो, मोबाइल टावर्स हो, लोग वहां पर बैंकिंग जो है व्यवस्था उसको बैंक चाहे कोई भी हो टेक्नोलॉजी के जरिए इस्तेमाल कर सके। वो फिजिकल बैंकिंग ना भी हो तो भी बैंक्स वहां पहुंचे। कोई भी प्राइवेट बैंक, मैं किसी एक बैंक का नाम नहीं लेना चाहूंगा, प्राइवेट बैंक्स ऐसा थोड़ी है कि रूरल एरिया में नहीं पहुंच सकता। आज वो मशीन होता है जिसके थ्रू कि आप डिपॉजिट दे सकते हैं, कोई भी बैंक हो उसके थ्रू दे सकते हैं। सो ये अब टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट है। तो ये जो पूरा डिबेट है कि कौन कहां ब्रांच खोल रहा है, हो सकता है कि आने वाले दिनों में इसका कोई मतलब नहीं रहेगा ही नहीं। तो इस डिबेट से हमें अब आगे निकल जाने की जरूरत है कि कौन सा बैंक किस जगह पर है या नहीं है। आंसर इस बात को करना है कि किस तरह से आप अपने ग्रोथ को ज्यादा इंक्लूसिव और रूरल एरिया में जो ग्रोथ है, रूरल एरिया में जो कंजम्पशन डिमांड में वृद्धि है, उस पर आधारित ज्यादा से ज्यादा करते हैं, अलॉन्ग विथ जो इंडस्ट्री का ग्रोथ है या जो लार्जर इंडस्ट्री का ग्रोथ है या सर्विसेज सेक्टर का ग्रोथ है या वो ग्रोथ जो शहरों में दिखता है। Mr. Bhattacharya, let's also talk about the Reserve Bank of India. And we have often seen that when the central bank and the government tries to prop up economic growth, the Reserve Bank says fiscal measures are needed at this juncture to give a push. Whereas the government tries to nudge the Reserve Bank to slash interest rates. Where does the truth actually lie? At this juncture, we are all concerned about economic growth. We have seen the monetary policy for the last almost 1 year. Interest rates have been slashed, except for the last bi-monthly policy. And the Reserve Bank often says that we have done our share. Now it is a fiscal measure. So now it is budget time. What all government can do? I think it's a very important part of policy debate in any country. Where does monetary policy scope ends and where does fiscal policy scope begins? You cannot deny that monetary policy is most effective when the fiscal policy is in tune and is responsible. But there are also occasions where the monetary policy should be focused on inflation stability and probably the growth concerns should be left to the government. Today we are in a situation where you need to fine-tune the fiscal policy in a manner that it can tackle the question of growth. So one view which probably the budget will have to consider is whether the fiscal policy at this state of India's economic growth should be counter-cyclical, which is that when there is a kind of an economic downturn, you need to open the purse strings and spend a little more money so that there is more demand in the economy by which you can actually revive growth. You have to keep in mind that consumer price index has seen a sharp increase in December. Everybody is expecting that it may come down in January, but that figure may be available to the government, but it will not become public till next month after the budget. So, Reserve Bank of India's primary goal is to target inflation. So, you cannot expect Reserve Bank of India to say that I will still relax or be more accommodative in my interest rate policy and not raise interest rates or cut interest rates. But you can surely expect the central government to adopt a fiscal policy that is more accommodative and spends more money to revive demand in the economy. My sense is that it will be difficult to judge or predict what
the Finance Minister, Mr. Nirmala Sitharaman, will do on 1st February. But it seems to me that a time has come where the quality of fiscal consolidation program is more important, more critical than the bare headline number of fiscal deficit that she announces. It is important to see that whatever slippages that you see in the fiscal deficit number are actually resulting in a qualitative increase in investment and expenditure in schemes that create assets and revive demand. तिवारी साहब, जैसे भट्टाचार्य साहब कह रहे हैं कि सरकार को अपने पर्स स्ट्रिंग्स थोड़े लूज करने पड़ेंगे तो उससे आगे बढ़ सकता है अर्थव्यवस्था जो है। साथ ही साथ क्या कहेंगे आप, इस बात की चर्चा होती रही जब कॉर्पोरेट टैक्स को स्लैश किया गया कि वो तो कंपनीज को फायदा हुआ, करे आम आदमी के हाथों में अगर पैसा जाए तो अर्थव्यवस्था को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिल सकता है। तो क्या उम्मीद रखें कि पर्सनल इनकम टैक्स के फ्रंट पे भी निर्मला सीतारामन मैडम कुछ ना कुछ वो दिखाएंगी दया दृष्टि लोगों पे? देखिए, भट्टाचार्य साहब जो बोल रहे हैं आज जरूरत वही है। बिल्कुल उन्होंने जो समअप किया है इम्पेकेबल, जिसको बोलते हैं ना, बिल्कुल डॉट। सरकार को आज वही करने की आवश्यकता है। थोड़ा आगे बढ़ के सोचने की जरूरत है, बजाय इसके कि सिर्फ इनकम टैक्स में कुछ कटौती हो जाए। वो एक तरीका है लोगों के हाथ में पैसे, लेकिन जो बात हम लोग कर रहे हैं कि सरकार को फिस्कल डेफिसिट थोड़ी चिंता उसकी छोड़ के अगर इकोनॉमी में अगर बढ़ाएं पैसा अपना जो लगाएंगे तो उससे जो कंजम्पशन और डिमांड जो बढ़ेगा वो रिवाइव करेगा ग्रोथ को, और एक साइकिल जो है जो कि आम आदमी के लिए बहुत जरूरी है। आज की ग्रोथ ऊपर जाए, कंजम्पशन डिमांड बढ़े, उनको ये सुविधाएं मिले जिसके चलते कि वो इन्वेस्ट कर सके घरों में, उनको ये सुविधाएं मिले जिसमें कि उनका जो जीवन चर्या है उसमें सुधार हो। वो सब जब तक इकोनॉमी में रिवाइवल नहीं होगा, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इमीडिएटली अभी आना मुश्किल लगता है, और इन्वेस्टमेंट जरूरी है टू बूस्ट डिमांड। तो जब वो सरकार की तरफ से होगा तो वो उस साइकिल को प्रमोट करेगा। वो आम आदमी के लिए, सरकार के लिए, इंडस्ट्री के लिए, सबके लिए ज्यादा जरूरी है, इसके बजाय कि हर साल जो ये इनकम टैक्स एक्ट में, ऐसा नहीं है कि उसकी जरूरत नहीं, लेकिन शायद अभी जो स्थिति है उसमें जरूरी ये है कि कंजम्पशन जो है उसको बढ़ाया जाए, डिमांड जो उसको बूस्ट किया जाए, रूरल एरियाज में डिमांड को बढ़ाया जाए ताकि इकोनॉमी जो है फिर से वापस आए। इसके पहले हम चर्चा ये कर रहे थे रिजर्व बैंक का, जहां तक इंटरेस्ट रेट का है। वहां मैं एक बात जरूर ऐड करना चाहूंगा कि देखिए 2 साल 3 साल पहले तक ये था कि बिल्कुल ही लगता था डायरेक्शन जो है ना वो दो अलग अलग दिशाओं में। रिजर्व बैंक इन्फ्लेशन टारगेटिंग, और वो पार्लियामेंट से मैंडेटेड है, आप कुछ कर नहीं सकते। इन्फ्लेशन जो है उसको 4% प्लस माइनस 2% यू हैव टू कीप। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमिटीज द एम एंड ऑब्जेक्टिव इज टू कीप इन्फ्लेशन विद इन दैट 4% प्लस माइनस 2। दैट्स द बेसिक ऑब्जेक्टिव। सो ये था कि ग्रोथ सरकार के जिम्मे, इन्फ्लेशन आरबीआई के जिम्मे। वहां से बात अब आगे बढ़ चुकी है। देखिए पिछले कुछ दिनों में बार बार रिजर्व बैंक गवर्नर जो शक्तिकांत दास है उन्होंने कहा है आरबीआई कैन नॉट शट इट्स आईज फ्रॉम ग्रोथ, मतलब ग्रोथ से हम बिल्कुल आंख बंद नहीं कर सकते। हमारा प्राइमरी रोल जो है वो इन्फ्लेशन टारगेटिंग है। तो कहीं ना कहीं कन्वर्जेंस अब दिखाई देता है। अब कहाँ है कि ये दिखता है। तो बजट इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट एक इवेंट हो जाता है और एक प्लेटफॉर्म हो जाता है जहां पर कि जो सरकार कदम उठाए इन्वेस्टमेंट रिवाइवल के लिए, कंजम्पशन रिवाइवल के लिए, बाकी चीजों को रिवाइवल के लिए, उसको रिजर्व बैंक भी आगे बढ़ के सपोर्ट करे। देखिए कहीं न कहीं 75 से 100 बेसिस पॉइंट, 75 to 100 बेसिस पॉइंट्स अभी भी रेपो रेट में कट की आवश्यकता है। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस आज भी भारत में बहुत ज्यादा है। तो जब बजट के थ्रू जो मेजर्स आते हैं उसको जब सपोर्ट मिलेगा आरबीआई से रेपो रेट कट के द्वारा, तब जाके जो बात बनेगी वो आज अर्थव्यवस्था के लिए ज्यादा जरूरी है। And very briefly before we wind up, you're talking about fiscal slippages. What about the FRBM Act? Can it be given a go-by? I think the FRBM law has a provision under which you can declare a pause. All you need to do is to take a considered view and issue an executive order. I think it's possible. Just wanted to add one more point, what Mr. Tiwari said, in response to your question on income tax relief. Remember, out of 130 crore people in this country, there are only 3.4 crore people who pay taxes. Now, therefore, if you are going to give a personal income tax relief and believe that demand will revive by that, I think that will be a mistaken notion, because a very small number, minuscule share of India's population are actually covered by income tax. So if you have to revive demand by giving more relief to the people, more money in the hands of people, you have to look for other direct benefit transfer schemes that affect larger number of people, the millions and millions of farmers, the rural artisans, people. So that is probably a better way of reviving demand through cash transfer. On that note, it's time to wind up this discussion and let's see how the budget provisions pan out on the 1st of February. Thank you so much for joining us.
You were listening to a discussion on pre-budget analysis on banking and finance. The participants were economic analysts A.K. Bhattacharya and Santosh Tiwari. S. Rangabashyam, journalist, initiated and moderated the discussion. This program was produced and presented by the News Services Division of All India Radio. You can also listen to this program on our website newsonair.com. You can also follow us on the News on AIR app for updates. You may email your opinion about this program at airnsdtalks@gmail.com.